हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। आज हम ओलिव बोर्ड के जो 50 मॉक्स लगाने वाली सीरीज स्टार्ट की है, 50 डेज 50 मॉक सीरीज, सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए। उसका मॉक 13 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जीएस का सेक्शन। पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफ एडी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग articles of Constitution of India shall a money bill not be introduced in the Council of States? मनी बिल 110 होता है, 110 प्लस 90 200, 193 या 109 होगा। 193 के चांसेस ज़्यादा है। According to the Industrial Policy Resolution, industries in which of the following statutes is solely responsible for the state? In which year 1932 the famous Pune Act was signed between Dash on behalf of Mahatma Gandhi and Ambedkar? Was signed between Dash on behalf of Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. In the year 1932, the famous Pune Act was signed between this on behalf of जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी के बीच में। Consider the following statements about the Satriya dance. Satriya is असम में, सही है। Whole, Himla's flute are the major accompanying instruments. ये तो नहीं पता पर लगा देते हैं इसमें। Common name for calcium phosphate. Calcium phosphate. ये से फोर होता है, क्या होता है? ब्लू स्टॉल तो नहीं है, बोन एश हो सकता है। नवतेज जौहर इससे एसोसिएटेड है। When a president use his discretion in appointing the prime minister. When can a president use his discretion in appointing the prime minister? When no political party enjoys a clear majority, only when the Lok Sabha has been dissolved in all circumstances. यमुना का कृष्णा, कृष्णा गोदावरी कावेरी, तापी गोदावरी। कावेरी कर्नाटक से आती है क्या? फोर सी है कहीं, दो जगह है। यमुना यमुनोत्री से आती है जो कि उत्तराखंड में है, थ्री है। थ्री है सिर्फ इन जगह है, ठीक। Who has written the book Sangeet Bal Prakash? Where is the Moeddams, the Mount burial system of Ahom dynasty? The idea of fundamental right is taken from FR जो है यूएसए से लिए है, और लैंग्वेज की नहीं। हाँ ठीक, यूएसए। Electric current is measured in ampere. Who coined the term zeroth law of thermodynamics, which asserts the two bodies in equilibrium with a third eye are in equilibrium with each other? Inflation is indicative of the decrease in the dash of a unit of country's currency. Inflation is indicative of the decrease. Inflation is indicative of a decrease in the dash of a unit of country's currency.
परचेजिंग पावर GDP, purchasing power of a unit of country's currency. हाँ. The first fluorine molecule discovered was in which ship the Royal Indian Navy revolt originated. पता नहीं, क्रांति तो नहीं है, हो सकता है. The Chola kingdom was known for its efficient administration. The small administrative unit was the Padinadu. With which of the following sports is Swapnil Kusale? What is the इसमें मुझे लग रहा है या तो टेबल टेनिस है या आर्चरी है. What is the population density 382? In which year were the first modern Olympic Games held? In 1900 1896 Olympic Games held. शायद 1896 है. Dadabhai Naoroji prepared the first estimation of national income. Estimation of national income in which ocean is the saltiest? Indian Pacific, Atlantic. The movement of water through the soil and its layers by gravity and capillary forces is known as movement of water through the soil by gravity and capillary forces. गटेशन तो टिप्स पे पानी आ जाता है. सॉइल से कोई लेना देना नहीं है. ट्रांसपिरेशन तो ये the movement of water through the soil and its layer by gravity and capillary forces. Percolation पता क्या होता है. गटेशन हो सकता है यार ये. परकुलेशन या गटेशन लग रहा है. ठीक है, रहने दो, इतना काफी है. बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं जीएस में. चलो, क्या कमर्शियल की स्पेलिंग गलत है? COMM होना चाहिए. इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछिए. ठीक. ब्लू द वेल मतलब अनफेयरली खेलना. गलत तरीका. A chemical liquid that destroys bacteria infecting non-living. Non-living पर अपन disinfectant छिड़कते हैं. Impart to impart मतलब देना. Retain. As a teacher, it's important to impart not only knowledge but also values. Impart मतलब give. हाँ तो convey आ जाएगा इसका synonym. Incorrectly spelled GUDCS की spelling सही है. Will power में double L आएगा या नहीं? Past tense sentiment सही है तो double L आना चाहिए. But now ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं. He कौन ही. At last his new well content. ठीक है, तो जहां तक है एस से स्टार्ट होना चाहिए. Well content with such a life. Nathaniel Nath Nathaniel Green reached the age of 14, but now a chance acquaintance taking a college life showed him his meager how meager his learning was. He began to think and wonder about things that he had never considered before. At last his new thirst of knowledge led him to ask his father for more schooling. Well content with such a life age of 14, but now a chance change of pretense taking of college life showed him his meager how meager his learning was. He began to think ऐसा 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 और ये तो सही लग रहा है. एडवर्सिटी मतलब कठिनाइयां. इसका ऑपोजिट बढ़िया चीज है प्रॉस्पेरिटी. He needs to clean the floor right now. Clean the floor right now. The floor needs to be cleaned by her right now. सही है. Due to official parsimony मतलब कंजूसी, frugality. His boss ordered to let I and Anish go to the let me and Anish let I and Anish to go तो आएगा नहीं तो go आना चाहिए सीधे.
Let me and Anish go and let me go ही आएगा, me and Anish go. Subjective. Let me, please let me go. हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है. Have you gave any thought to your future plans? Have है तो given आना चाहिए, है ना, helping verb है पहले. तो if you want to save your cabbages from from being eaten by caterpillars, मतलब सोनिया, या जो भी आप कहते हो अपनी जगह पे. He likes painting, dancing and to explore, नहीं, and exploring आना चाहिए. ये parallelism होती है, इसको बोलते हैं. इसमें देखना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. शी इज ऑनेस्ट के पहले एन लगता है, तो इन्हीं दो जगह पे है. शी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ होना चाहिए, तो बी. शी हैज ऑलवेज बीन डैश टू swim to build up the strength. Has always been encouraged to swim and build up her muscles. I hope I don't just die before I get to travel the world. Just die मतलब किकदा बकेट होता है, मर जाने को बोलते हैं. I have been removed from the post of inspector. ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है. The post of inspector नहीं, from the है ना, तो somebody have इधर have has आ सकता है, तो somebody के साथ लेकिन has आएगा. Somebody has removed me. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस अभी देखेंगे, 1 2 3 4 5. The practice or custom of having more than one wife or husband, मतलब polygamy होता है. Antonym of intentional मतलब जानबूझ के, इसका ऑपोजिट accidental, गलती से. Supervise का synonym लीव, ओवरलोड, मॉनिटर करना. ठीक है, सुपरविजन. अब आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे. In my book, I will share what I have dashed from more than a decade of studying climate change with experts and investing in the innovations we will need to address it. In my book, I will share what I have learned. ठीक है, and I hope to dash the science in a clear and compelling way. And I hope to explain the science clear way. I will also propose a plan for what we need to do over the next decade and beyond to dash the tools to build the tools that will help us, है ना, to build that will help us eliminate greenhouse gases emissions while scaling up the powerful solutions we already have. And I will suggest some concrete dash, concrete steps, and that companies can take. स्टेप्स ये है फिर तो, स्टेप्स जो कि लोग ले सकते हैं, गवर्नमेंट और कंपनी. आई एम एक्साइटेड अबाउट द डैश एंड ईगर टू कंटिन्यू द conversation about how we can avoid a climate disaster. I am excited about the dash, about the festival, about the house. तो ये क्या कर रहा था, तो ये बुक ला रहा है, तो बुक के लिए वो एक्साइटेड है अभी. ठीक, इधर पे और कोई तो क्वेश्चन है नहीं. रीजनिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम द गार्डन, मोहित मूव्स 15 मीटर टू द वेस्ट. अगर ये गार्डन है तो 15 मीटर वेस्ट की तरफ चला गया है अभी. ही देन टर्न्स टू हिज राइट. अब इधर को जा रहा है तो उसका राइट है इधर, और फिर 12 मीटर गया. देन ही टर्न्स 135 इन दी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज ये है तो 90 इधर और 90 के बाद 45 इधर, तो ये 135 अब इधर को फेस करता है. इन विच डायरेक्शन ही हैज टू मूव टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको इधर से इधर जाना पड़ेगा, जो कि है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. 2 + 2 4, 2 6 8 10 2 12, एल आना चाहिए. और इधर है 25 -3 22 -3 19 16. ठीक है, 13 -3 10, एल जे. हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1 2 3
चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और 11 12 13 और 14, ये पूरा 15, ये पूरा 16। और तो नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। 16 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, ये 12, ये एक 13, ये एक 14, ये पूरा एक 15, ये पूरा एक 16, 17, 18, चलो क्या पता 20 भी हो, दिख तो रहे नहीं है अभी। 18 मार्क करते हैं। So the position of how many letters will remain unchanged if all the vowels followed by consonants are arranged in alphabetical order. If all the vowels followed by consonants, पहली बात तो इसमें vowel कितने हैं? O U E है, followed by consonants, followed by consonants, consonants के बाद आएंगे में सभी स्वरों को और उसके बाद व्यंजनों को। अच्छा, ये और ये फॉलोड बाय है ना, तो ये फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स। ठीक ठीक ठीक। तो ओ यू ई का बनेगा ई ओ यू। बचा क्या? टी आर एस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है इसका, तो जो वो बनेगा आर आर एस टी। तो टी ई, एक तो ओ रहा सेम, एक तो यू रहा सेम, फोर्थ प्लेस पे आर आ रहा है। एस यू एस यू आर ई और आर, तीन सेम है। कभी कभी जैसे कंफ्यूजन हो जाती है तो अपन को हिंदी में देख लेना चाहिए। हम्म। तो इधर देखो +4 हुआ है, इधर कितना प्लस हुआ है? 4 2 6। अगर इधर 4 हुआ है, इधर 8 होना चाहिए, इधर 10 होना चाहिए, तो ये 80 और 8 ठीक है, बिल्कुल सही है। 80 आना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ये है 3 और ये है 6। तो D-2 और D+2, ठीक है। 14 - 2 14 + 2, ये हमेशा ऐसे। 9 - 2 9 + 2, ठीक है, मतलब G और K। ठीक है। 13 - 2 11, फिर से K आना चाहिए, G डबल K एक ही जगह पर है। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो D के बाद E है, डी के बाद जस्ट टी, तो डब्ल्यू के बाद जस्ट, 23 के बाद एक एक्स आना चाहिए, इधर है। C+3 है तो 7 + 3 10, तो एक्स के बाद जे। इसकी मिरर इमेज सी के बाद ए के बाद एंड सही है, उसके बाद के के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल डब्ल्यू, के बाद ओ 2 एस, ए कैपिटल चाहिए था। ठीक है, फोर्थ है। ओके। हम्म। 9 का 343, इसमें +1 करा, वो हुआ 8, 8 का स्क्वायर 512। ठीक है, उसमें 7 जोड़ दिया। 9 में 1 जोड़ा, 1000 हो, 10 होगा उसका क्यूब तो 1000 होगा। हम्म। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 का क्यूब 343, 343 में से 1 जोड़ दिया, तो ये अलग है, इसमें माइनस हो गया। 8 का क्यूब 1 729 + 90। तो पी, पी के बाद एफ बी एल, डबल एल डैश बी, एल डैश बी और बी एफ, तो इधर एल आना चाहिए,
एक दो तीन, थर्ड प्लेस पे एल। थर्ड प्लेस पे एल इधर, इधर। और LFB, तो LLPB, FB, तो ये बन रहा है PLLFB। PLLFB, 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 PLLF, लास्ट में है और उसके जस्ट पहले एल। ठीक है, तो थर्ड वाला फॉलो कर रहा है इधर। टीच, 20 - 1, 5 + 1, 1 + 1, 3 - 1। अरे, माइनस हुआ, +1, +1 -1, 8 - 1, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये कह रहा है कि वॉवल में +1 होगा, कॉन्सोनेंट्स में -1। ठीक है, आई जो कि वॉवल है, +1 होगा, लास्ट में भी +1 होगा, तो 10 - 6, 13 - 1, 12। तो 10 12, A+1, 3, 10 12 और 3, 7 माइनस, ठीक, 6। नो P इज Q, मोस्टली Q इज R, मतलब कि ऑल Q इज R, ओनली अ फ्यू R इज S, का मतलब है R इज S, सम R इज S और सम R इज नॉट S। मोस्टली का मतलब है ऑल Q R ये, और इसका मतलब है सम R इज S एंड सम R इज नॉट S। ठीक है, तो क्या Q से रिलेशन बन रहा है? देखो, ये ऑल है, ये सम है, तो क्या सम Q से S तक जाना है? ये Q है, R में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो S कह ही नहीं सकते हैं अपन। नहीं बोल सकते फिर ये। और क्या ऑल R P है? क्या ऑल R P है? नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए, तो सेकंड फॉलो करेगा। अभी इसको मार्क कर दे रहे हैं वहाँ पर रिव्यू। ठीक, ऑल बुक आर पेपर, नो पेपर इज नॉवल, ऑल नोट्स आर नॉवल। इनका पेपर से रिलेशन, इसका नॉवल से। नो बुक इज नोट्स, पेपर का पेपर से, नॉवल का नॉवल से। नो बुक इज नोट्स, बिल्कुल सही है। नो पेपर इज नोट्स, ये भी सही है। सम नोट्स आर बुक्स, सम नोट्स, सम नोट्स आर बुक्स। रिलेशन का नेगेटिव बनना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी इसकी सही हो जाएगी जहाँ तक है। 1 और 2 तो फॉलो कर रहे हैं, ऑल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ तो ठीक। 1 और 2 ही फॉलो करेंगे, वो गलत है। Select the option that is not embedded in the figure. Not embedded, क्या ये embedded है कहीं? क्या ये है? ये रहा सर्कल, फर्स्ट तो है, और सेकंड, सेकंड ये देखो इधर है, ठीक है, इधर सेकंड है, थर्ड ये रहा, तो फोर्थ नहीं है, फोर्थ फिगर इज नॉट embedded। Select the odd figure, पहली बात तो इधर ये 4 है, 4 फिगर 4 फिगर 4 फिगर 4 फिगर, ठीक है, सभी में 4 है। पर इसमें सब में एक एक है, इसमें भी सब में एक एक है, इसमें 2 आ गए, इसमें सब में एक एक, इसमें सब में एक एक, तो फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन गलत। एक ही लाइन में 2 नहीं थे। हम्म, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड।
मॉक 13 से अपन को क्वेश्चन दिख रहे हैं नॉट एम्बेडेड वाला। ये चीज मुझे लग रहा है फर्स्ट ही एम्बेडेड नहीं है, क्या सेकंड है? सेकंड तो है। थर्ड, थर्ड भी है। फोर्थ, फोर्थ भी है, फर्स्ट नहीं है। 8 persons are sitting in a linear row facing the south direction. In a linear row facing the south direction. ठीक है। फोन, फोर, मान लिया यही साउथ है। 4 पर्सन, ये नॉर्थ। 4 पर्सन सेट बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ से ही हो सकता है, यहाँ एफ हो सकता है, या तो यहाँ है तो यहाँ सी हो सकता है। 4 पर्सन बैठे हैं और इनके बीच में। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एक दो तीन, सी के लेफ्ट में थर्ड, टू, तीन। तो उस हिसाब से ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 8, एक ये 9। तो ये तो गलत हो गया फिर, 8 से ज्यादा लोग हो रहे हैं। तो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। तो एक दो तीन, मतलब 4 2 6 7 8, इधर 2 लोग और आएंगे। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी जो है डी के जस्ट राइट में आ रहा है। नीदर डी नॉर बी सिट्स एडजेसेंट टू ए। तो यहाँ डी और बी नहीं आ सकता है। तो यहाँ बी नहीं आएगा, यहाँ डी नहीं आएगा। क्या यहाँ भी आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे डी भी नहीं आएगा, तो जी इधर भी नहीं आएगा। तो ये डी है, ये जी है। ठीक है, ऑब्वियसली बी यहाँ होगा फिर। एंड ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। ये एच होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ये हो गया ई। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी? एक दो तीन चार पाँच, 5 लोग। मोर देन 4। बढ़िया क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। हम्म। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे नीचे वाला उधर गया और रोटेट हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये ट्राइंगल भी ऊपर जाके रोटेट होगा। फर्स्ट 3 में है। सेकंड वाला भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर आ गया, तो इधर पे ये सेकंड वाला डाउन, डाउन देखेगा सब में। के भी 90 डिग्री नीचे, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के फर्स्ट और थर्ड में है। सबसे ऊपर वाला भी 90 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री घूमा ऊपर की तरफ आएगा। फर्स्ट और थर्ड में से थर्ड हुआ आंसर। 9 is related to 44। 9 इंटू 5 -1, 18 इंटू 5 -1, 25 इंटू 5 -1। ठीक है, इजी है। विच इज नॉट रिलेटेड? फियर, सरप्राइज, एंगर, एक्साइटमेंट, कमिटमेंट। ये सब फीलिंग से रिलेटेड है, कमिटमेंट एक अलग चीज है। कार्टून्स पे ये बना है। सी में -1 हुआ है, 16 में -1 नहीं। तो क्या है? A+1 बोल सकते हैं, 12+। ये भी ऐसा नहीं है। तो ये 4 हैं, ये 4 हैं। ठीक, ठीक ठीक है। ये देखो, इधर भी डबल ओ दिख रहा है, इधर भी डबल ओ दिख रहा है। सी, A+1 ये सेम। 2 6 12 13 15 16 18 21, इंक्रीजिंग ऑर्डर है देखिए। इधर पे चेक करो, इंक्रीजिंग कौन है। 2 के बाद 9, 9 के बाद 14 या 13, 13 आएगा। इधर पे 13 था, एन था ही नहीं पहली बात। 13 15 16 18, एस, टी और यू में से इधर पे टी है ही नहीं, तो ऐसे तो यू भी नहीं। एन नहीं, एम है, पी आर एस टी यू। इधर पे ना टी है ना यू है।
अच्छा, लास्ट में यू लग ही रहा है बस, तो इधर पे भी लास्ट में यू लगेगा। ये लगा दिया। अ क्यूब इज मेड, पता करना है कि इसके ऑपोजिट क्या है। देखो, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये, तो परसेंटेज एक छोड़ के एक करा जाता है। क्या परसेंटेज का साइन ये है। 14 - 1 13, तो ये ऑपोजिट है फिर। बी समझ आया। ये ऑपोजिट है कि आई आर ऑपोजिट है, बी वाई ऑपोजिट है, बिल्कुल है। और ये 13 + 5 18, 18 + 5 ठीक है। तो ये 29 है। ठीक है, 29 + 5 नहीं होने वाला। ये 24 है, 24 + 5 ये 27 होता है, ये तो 29 हो रहा है। 15 + 5 इधर है। 21 + 5 26 सही है। तो जेड है, पर एस का टी नहीं होता है, एस का क्या होना चाहिए था, एस का एच होना चाहिए था, तो फोर्थ वाला फॉलो करेगा। के का भी जेड का है। 16 + 5 21, 21 + 5 26। बढ़िया रीजनिंग आई है आज। 36 और 48 को इक्वेट करना है, तो 3 × 48 माइनस का 36 + 10 मतलब कि ये 26। ठीक है, ये 120 प्लस पार है और 15 तो कभी नहीं देगा, तो ये हटाओ। 48 के बदले 36 -5 इंटू 48/6, 6 से 8 बार। ये तो 8 × 5 = 40 -4 दे रहा है। 6 + 48 ये 24। थर्ड वाला सही हो गया। ठीक है, टाइम कम बचा है, रीजनिंग बढ़िया लेवल की आई है आज। सतीश एंड ममता, हैशटैग दीपक। अच्छा, एंड मतलब नहीं है, एंड का सिंबल है। सतीश एंड क्या बता रहा है, सतीश इज दी हस्बैंड। ठीक है, सतीश इज दी हस्बैंड ऑफ ममता, तो ये हस्बैंड वाइफ। एंड ममता इज दी मदर ऑफ दीपिका। ठीक है, एंड दीपिका इज दी सिस्टर ऑफ अनमोल। अनमोल इज दी हस्बैंड ऑफ जिया। अब यही पता करना था, जिया और सतीश का रिलेशन क्या है। तो जो सतीश है वो फादर इन लॉ हुए, सीधी सी बात। ठीक है, 12th क्वेश्चन। हम्म कर तो सब दिए हैं। ठीक है, मैं देखते हैं अब। 4 शॉप्स हैं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ईच आर्टिकल सच एज। 4 शॉप्स हैं और ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट। ए ऑफर कर रहा है दिस एंड दिस। अच्छा, बी ऑफर कर रहा है 2 टाइप के, सी ऑफर कर रहा है 2 टाइप के, और डी ऑफर कर रहा है 2 हिसाब से। व्हाट इज द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर। देखो, कस्टमर को बेस्ट ऑफर कब मिलेगा, जब उसको मैक्स डिस्काउंट मिले। तो 50 और 10, इसको कैसे करोगे, x + y + x/100 से 60 और 505। तो ए दे रहा है 65। ठीक है, बी कितना दे रहा है, 50 15 65। यार ये करेंगे क्या, इसमें प्लस प्लस माइनस नहीं, माइनस करेंगे। ये दे रहा है 60 -x - y +x/, ठीक 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 ठीक। तो 60 और -45 × 15 अपॉन 100। 15 × 15 है 225, × 3 है तो 675। इसमें से आप ये माइनस करोगे तो 25, और 60 में से 59 में से 6 हटा दो 53। तो ये है बी का 53। ओके, सी दे रहा है 30 30 60 -9 मतलब 51। अभी भी ए का ही सबसे ज्यादा है। 40 20 60 -4 2 8। ए का ही सबसे ज्यादा है डिस्काउंट, तो फायदा होगा कस्टमर को मैक्सिमम डिस्काउंट का। Udit and Aman participated in a race where both started the race with the speed in the ratio this and this। ये है उदित, ये है अमन, इसकी स्पीड है। उदित कवर्स इतने मीटर एंड इतने सेकंड्स। अच्छा, उदित की जो स्पीड है वो है ये, इतने मीटर इतने सेकंड में। तो वैसे दी कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू ये दी है, 4 से 12 बार। ठीक है, तो
उस हिसाब से अमन की कितनी आएगी, 10 × 5 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। यह है अमन की पूरी स्पीड। तो पता करना है, फाइंड 612, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम अमन इज 600 मीटर, 612 मीटर अहेड ऑफ उदित। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर 12 से करोगे तो 12 से 5 बार पे और 1 बार पे 51 सेकेंड्स। ये इतनी चीज को 51 सेकेंड्स में कर लेगा। हम्म। सदेश अपॉन दिस 4 यूनिट ने तो 12 बार पे काटा। उदित कवर्स 480 एम इतना। फाइंड आउट हाउ मच टाइम अमन इज 3 मीटर अहेड ऑफ उदित। हम्म, पता नहीं यार क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा दादा। छोड़ो इसे। चलो भाई। 2/3 ऑफ है तो पहले ऑफ वाला सॉल्व करना पड़ेगा। 2 4 8 बटे 27। फिर डिवीजन का साइन है, इधर ऑफ वाला पहले सॉल्व करेंगे। पहले पहले क्या सॉल्व करेंगे, एक ही बात है वो। 3 4 12 बटे 25 × 3। ठीक है। 3 36 इसका। फिर डिवीजन का साइन है ना, तो 25/36 बनेगा ये। अपॉन में पहले ऑफ का साइन, तो 2/3 ऑफ के साइन से 6 4 24 और 3 5 15। ठीक है। 3 से 8 बार। तो ये क्या बना, 8 × 2 = 16 और ऊपर है 15। 8 इसको 2 बार काटेगा। ये 9 9 बार पे 3 से, ये 3 से 5 बार पे 125/36 × 9 324 × 2। 125/648। बिल्कुल ठीक है ये। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार ए एंड बी इज। ठीक है। द नंबर ऑफ जार्स, the number of marbles in C is 10% more than that of in A and 20। अच्छा, तो ए बी सी लिखो। सी कह रहा है वो 10% ज्यादा है ए से, तो ये 10 है तो ये 11 हुआ। एंड 20% मोर, और इससे इतना ज्यादा, तो इधर पे 5। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। इधर पे 6 का मल्टीप्लाई करो, ये 66 हुआ, इधर पे 11 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो 10 55 66, ये बन रही है चीज। और क्या था कि ए और बी का जो डिफरेंस, इधर पे भी तो 6 का मल्टीप्लाई होगा। हम्म। तो क्या कह रहा था, ए और बी का जो डिफरेंस है वो 50 है। तो 5 की वैल्यू 10 यूनिट आ रहा है। नंबर ऑफ सी, तो 66 × 10 660। इफ टू types of liquid where this and this respectively are mixed in ratio this, then what is the cost। ठीक है। 302 9 करो सीधे, 18, और ये 0 25 15 3 17 8 6 14 3 4 अपॉन 14। ठीक है। 14 से काटा 3 बार पे 42। 14 से काटा 1 बार पे 2 और 1 और 28। 9 टाइम्स पे 126। तो 319, 320 तो नहीं है कहीं। नहीं है तो 319 ही होगा, नियरेस्ट टू अ होल, क्योंकि जो कि दो ही बच रहा है, तो 1 आएगा। ठीक है। रजनी इन्वेस्ट एक्स फॉर 4 मंथ्स एंड हिरानी इन्वेस्ट 1200 रुपये फॉर 6 मंथ्स। फाइंड दी वैल्यू ऑफ देयर। ठीक है। एक्स चार, एक्स जो है 4 मंथ्स के लिए, और 1200 जो है 6 मंथ्स के लिए। तो रजनी एंड हैरानी को जो है प्रॉफिट हुआ है इस रेशियो में, 6 ने 6 को काटा, इसने 300 बार काटा, एक्स है 1500। इजी क्वेश्चन है ये। हम्म। ये कह रहा है 0.8 मतलब 8/10 इंटू
दिस प्लस दिस अगर मैंने किया तो 0.40 आया, उसमें ये माइनस किया तो ये आया 8 और ये आया 2। ठीक है, 8 से 2 बार, 8 से 8 बार, 26 4, और इसके 2 और इसका 1, तो 0.1, सॉरी क्या बोलना, 224। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या √5 + √5 7 और इससे बड़ा है? या 6 और 7 8 और 5 से बड़ा है? हम्म ये तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसको अभी देखेंगे। कुछ डिफरेंस डिफरेंस का करना रहता था इसमें। ये देखो, ये कितने टर्म्स है? 1 से लेके 89 है, तो 89 ही टर्म्स है। बीच में क्या आ रहा होगा? cot 90। cot 90 क्या होता है? 0। सॉरी सॉरी सॉरी, cot 90 नहीं है। cot 90 कहाँ से आएगा? ये तो cot 89 तक जा रहा है। रुको, ये पहली बात तो 89 ही टर्म्स है। मैंने रन किया, 84 हुआ, cot 45 तो 1 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 90 - 1 मतलब कि 1089। 1089 cot 89 तो कट जाएंगे, इसी तरीके से सब कट जाएंगे और बचेगा क्या? cot 40 89 90 45 कुछ बचेगा? वो सभी 1 ही है, मतलब इवेंचुअली सब कट पिट जा रहे हैं और cot 45 की वैल्यू तो 1 ही आ रही है। ठीक है, यही था आंसर। एक्स पे सही लगाया है। 59 का आंसर 1 लगाया है नहीं? हाँ। ठीक है, x² + y² + z² है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें देखो, सबसे बेस्ट रहता है आप ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, इसको यहीं भेज दो, और उससे कोई मतलब नहीं है। क्या देखना है? x की वैल्यू क्या होगी? इधर पे 2 कॉमन लेने के बाद x का कोएफिशिएंट अपॉन उधर पे x का कोएफिशिएंट, y क्या होगा? -1, z क्या होगा? -1। तो 1 प्लस -1 अपॉन -1 1, और z इंटू एक्स डिवाइड बाय 1 3। 3 नहीं है, तो कुछ गलती हो रही है। y अपॉन x है ना, तो ये नेगेटिव आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा। और ये क्या है? x इंटू जेड -1 अपॉन -1, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है ये क्या है? 5 - 1 मतलब 4/5, फिर ये है 5/6, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वो है 14/15, ये है 15/16। ये वाली सारी चीजें कट रही हैं, तो बचा क्या? 4/6 मतलब 2/3। इजी है ये क्वेश्चन भी। Find the sum of average of the first 437 numbers and the average of the first numbers। अच्छा, सम पता करना है किसका? इसके एवरेज का और इसके एवरेज का, जो कि ये ऑड है। तो 2n - 1 is 437 प्लस 1 438, 2 इसको काटेगा 2 टाइम्स पे, 19 टाइम्स पे, तो यही है इसका एवरेज, क्योंकि n² होता है ऑड में, और फिर n से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज है। और इसका एवरेज क्या होगा? n2n + 1/2, n इंटू n + 1/2 ठीक है। जो इसको काटेगा 16.25 पे, मतलब 0.5 आ रहा है। 6 और 2 1, 1.5 है कहीं? बस, आगे जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, 1.5 दिख गया ना, बस काफी है। द एरिया ऑफ द पार्ट बिटवीन टू concentric सर्कल्स whose circumference are this and this। देखो, सर्कमफेरेंस बड़े वाले सर्कल की ज्यादा होगी, ये है 220, ये है 176, तो रेडियस निकालने को कह रहा है। इधर पे 2, सॉरी हाँ, सर्कमफेरेंस है ना, तो 2πr1 इज 220।
ये इसको काटेगा 10 बार पे, ये इसको काटेगा 5 बार पे, तो R1 आया 35। और 2 पाई R2 जो कि स्मॉलर का है वो है 176। ये इसको काटेगा 8 बार पे, दो इसको काटेगा 4 बार पे, तो 4 × 7 28। ठीक है, दोनों के रेडियसेस ये हैं। तो इनका ये एरिया है वो कैसे आएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर, जो कि हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब 8 5 है 50 13 63 इनका सम। और इनका डिफरेंस 7। 7 से 7 गया, 22 × 3 66, 132 प्लस 6 138, 1386। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। In a quadrilateral PQRS bisectors of quadrilateral है PQRS bisectors of Q और R। ठीक है, मीट, अच्छा ये बाइसेक्टर्स है। ठीक है, मीट एट ओ, और जो P माइनस एस है वो है 24। अगर ये है P ही है तो ये है 20। एस क्या है? P-24 है। एस क्या हुआ? P-24 हुआ। ठीक है, और जो है क्या कि P, ये Q था, Q आ रहा, QOR जो है वो 107 है। देखो ये जब भी बाइसेक्टर होता है ना कोऑर्डिनेटर में, तो ये क्या होता है, 107 जो है वो क्या होता है, इन दोनों के सम, 2B-24/2। ठीक है, तो ये होगा 214। इस 214 में प्लस होगा 24, तो 238। और इसका डिवाइड होगा 2 से, तो P आएगा 1 और 19। ठीक है, 119 मतलब। लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 9 AM से 6 इवनिंग तक गए हैं। ठीक है, what is the ratio of number of people who visited hospital in between 9 and 12 9 AM से 9 AM से 12 PM तक? वो ये लोग हैं। और इनका रेशियो अपन को चाहिए है कैसे? टू द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड हॉस्पिटल इन बिटवीन 3 PM, तो मतलब 3 PM से 6 PM तक इन सबका चाहिए। तो ये 96 है, इसका 4 ऐसे दे दो तो ये 122 हुआ, ये 100 हो गया। और 122 और 100, 2 ट्रिपल 2। इसमें 132 जोड़ा तो 4 5 और 3। ठीक है, इसका डिवाइड करना है किससे? इसका 4 ऐसे दे दिया, 140 140 280, और 108 जोड़ दिया 388। 2 से काटा 16 टाइम्स पे तो 32, नहीं 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 नहीं, 16 टाइम्स नहीं, 17 टाइम्स पे 34, और फिर 7 टाइम्स पे। 2 से काटा 19 और 4 टाइम्स पे। 7 7 14, 1 15, और ये एक 9 5 14, 9 10 14। ये पता नहीं किससे कट रहा है, देखते हैं। तो ऐसे क्या ऐसे ही है, वो किसी से कट नहीं रहा क्योंकि। तो ये है 6 से लेके 10 तक। टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब 100% की वैल्यू दी है 420। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 100% की वैल्यू, तो मतलब 1% की वैल्यू क्या, 42/10। ठीक है, 0 से 0 बढ़िया। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7 and 8। 7 है ऑरेंज और 8 है ये है 45%। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 9 and 10। 9 है येलो और 10 है ये है 45। अरे यार, ये तो 0 हो गया। 0 है तो फिर सीधे आंसर 0 है। इसमें तो 100% की वैल्यू निकालने की जरूरत थी नहीं। A sum of money invested at R% rate for simple interest for 3 years, if he invested at R+5, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या आएगा? 3 × 5% के हिसाब से, जो कि क्या है 342 दिया है। परसेंट की वैल्यू है इतनी, प्रिंसिपल इसी पे ही होगा। 5 इसको काटेगा 20 बार पे, 3 इसको काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है 114 बार पे। और 2280, ये बन गया आपका प्रिंसिपल। इजी क्वेश्चन, इस तरीके से करना चाहिए उसको, रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। तो इसमें क्या पूछ रहा है?
Find the sum of cost of 3 kg of mangoes in city. कॉस्ट ऑफ वन दी है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो दी है और एप्पल दी है। तो क्या पता करना है? सिटी, फाइंड द सम, सम निकालना है, ठीक है, किसका? कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ मैंगो इन सिटी एल। तो सिटी एल में 3 kg ऑफ मैंगो, और क्या निकालना है? एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स इन सिटी के। 18 × 4 = 720, और ये 480, इसका 8 से दे दिया 80, 4 120, ठीक है, 1200। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क एंड इतना। तो टोटल वर्क अगर यही होगा तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी एक्स, एक्स और वाई की, ठीक है। एक्स वर्क 20, अच्छा 20 रुपए दिन का, और ये 50 रुपए दिन का। हम्म। एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर, completed the work. What is the sum of amount received by x and y? ये 20 रुपए या दिन करता है, ये 50 रुपए या दिन करता है। हम्म। What is this amount of sum received? अच्छा, तो ये x कितने दिन काम करेगा? एक सेकेंड, एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ये और ये डिवाइड किया तो 6 आया। क्या कराना चाह रहा है? 260, 50, 110, और ये 6। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो है 104 टाइम्स तक है, and it is divided by 271. The remainder is, okay, तो लास्ट में अगर 999 मान लो और ये 271 है, ठीक है। पहली बात तो 825, 4 टाइम्स 4 1, 4 280, 4 7 28, तब भी ज्यादा हो रहा है 3 से। 8 टाइम्स 3, ये होगा 81। तो 999 में से ये माइनस करा, 6 आया, 8 आया, 186। तो 186 है रिमाइंडर। क्या मतलब है, ये कितनी बार है? 3 डिजिट का है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखोगे आप रिमाइंडर निकालने के लिए। इफ द हाइट ऑफ अ गिवन कोन बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, अगर कोन है उसकी हाइट पहले अगर x थी, अब वो बन गई है 4x, बिकम 4 टाइम्स, एंड द रेडियस ऑफ द बेस बिकम्स ट्वाइस। रेडियस अगर r था तो ये बन गया है 2r। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन? देखो 1/3 पाई r स्क्वायर एच तो होता ही है, तो इधर पे ये होगा आर स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 कट गया, क्योंकि ये होगा आर स्क्वायर एच, 4x। एक्स और आर स्क्वायर कटा, एक्स और आर स्क्वायर कटा, 1:16। ये है आपका आंसर। कॉस ये साइन ये, अब हम कॉस ये साइन ये किस चीज का फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी अपन कॉस ए माइनस बी। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे प्लस के साइन से, तो वो बनेगा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हम्म। अरे यार, 1 + 2 sin cos, इसको cos 2 थीटा कह दें क्या? 2 sin थीटा है। हाँ ठीक ठीक, ये होगा sin 2 है, मतलब sin 22। 1 + sin 22 अपॉन cos 22। इसको क्या लिखेंगे? कॉट नहीं, sec 22 प्लस का tan 22, sec और tan, sec प्लस tan है।
छोड़ो यार, ये नहीं आ रहा समझ। कोई छोटी सी चीज होगी है जबकि इसका सॉल्यूशन जो भी होगा। 73 देखते हैं फटाफट। ये एक बार में कभी नहीं होता इससे। नेक्स्ट, विच शॉप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फर्नीचर। तो ये तो इन सब का सम्मम करना पड़ेगा, पर इतनी सारी शॉप्स हैं तो अपन देखेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन ए की चेक करेंगे। इसका है कैसे दे दिया, 90 हो गया, 90 और 140। अच्छा एक ही दिया ना, तो ये 4, ये 23, 123 जोड़ा। तो ए है कितना, 7, 5 और 3। ठीक है। बी देखो, सॉरी बी नहीं, क्या देखना है, बी डी ई, ठीक है। बी भी देखना है, डी भी देखना है, ए भी देखना है। इसका साथ ऐसे दे दिया, 150 प्लस ये 230 प्लस 90, 320 -1, 319, 319। तो बी तो नहीं है अभी हाईएस्ट, तो बी को हटा दो। ए है फिलहाल के लिए। डी को चेक करेंगे। इसका 3 ऐसे दे दिया, 170 प्लस 70, 240, 240 प्लस 102, 342। सी भी, डी भी ज्यादा नहीं है। यह है अगर 130 प्लस 70, 200 प्लस 107, 307, सबसे ज्यादा ए ही है। ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा जब लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली ऑप्शन ए लंबा रहता है, मतलब ऑप्शन ए ही आंसर रहता है, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन होती है ना उसमें। तो ये ऐसा दिया है। अब बोला क्या है, बी डी सी जो है वो 3x है, और डी सी बी जो है वो 4x है। तो इन दोनों का सम ये 7x होगा, डी बी ए। अब वो क्या कह रहा है, डी बी सी तुम्हें 40 दिया है। अच्छा, अगर ये डी बी सी 40 दिया है तो 7x इक्वल्स टू, सॉरी, जब ये 40 दिया है तो 7x प्लस 40 इज 180। तो वो 140 आएगा, x आएगा 20। बोला गया है डी, फाइंड द मेजर ऑफ, ये एंगल बोलना चाह रहा था, ट्राइंगल नहीं, बी डी एंड सी। 3 इंटू 20, 60। ये है, a man earns a profit of 30% by selling a phone at a certain price. If he sells the phone at 3 times the selling price, अच्छा, कॉस्ट प्राइस ये है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है अगर उसकी 10, तो सेलिंग प्राइस है उसकी 13, ठीक है। अब अगर वो जो है SP2 39 कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ इट सेलिंग प्राइस, देन व्हाट विल बी दी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 29 कमा रहा है ऐसी 10 पे, तो 290 हो गया प्रॉफिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 72 में क्या है, ये समझ नहीं आ रहा था। 69 में क्या है, देखो जो वेजेस होती हैं वो होती है एफिशिएंसीज के रेशियो में। ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, दोनों का काम हुआ ये 3 और 1। एक्स काम करता है 20 रुपया डे में, ये काम करता है 50 रुपया डे में। व्हाट इज दिस सम, और अगर एक्स एंड वाई टुगेदर कंप्लीटेड दी वर्क, व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स एंड वाई। पता नहीं यार, 4, 6। देखो ये जो है, दोनों साथ में करेंगे तो 6 के हिसाब से कुछ बन रहा है, और 6 का मुझे एक ही मल्टीपल दिख रहा है। अब अपन ये चांस तो ले सकते हैं इतना सा, है ना। 58। अब 1.5 मिनट बचे हैं, इसमें क्या किया जाए। रीजनिंग में क्या था, 6, 12। इंग्लिश में कुछ है, मैथ्स में एक तो 72 है, और एक तो ये है। चलो अगर सब जगह स्क्वायर कर दिए जाए, सबका स्क्वायर कर दिया जाए, ये √5 है, ये 4, 5, 20 हो गया। क्या ये 7 + 3, 11, प्लस ट्वाइस ऑफ 21। अगर ये 16 भी होता तो 4 बाहर आता, 4, 2, 8, ये कम से कम 19 हो रहा है। तो ये तो बड़ा ही है इससे, तो ये तो गलत है मेरे ख्याल से। 6 और 7, 6 और 7, 13, 13 + 7, 6, 42। अगर ये 36 भी होता तो 6, 2, 12, ये होता कम से कम 25।
क्या ये 8 5 13 प्लस 8 5 40? अच्छा 13 + 40 थी, 13 + 40 सेकंड तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 4 × 6 = 24। 4 × 6 = 24। और ये है 3 + 9 = 12। 27 6। फर्स्ट वाला तो मुझे सही नहीं लग रहा। ये तुक्का लगा देते हैं बस, चलो। हाँ। ज्यादा ठीक मार्क्स नहीं बने हैं। ओके थे। मॉक भी अच्छा खासा कठिन था ये। डिफिकल्ट लेवल का मॉक था। ये देखो क्या हो गया इधर पे। 6 क्वेश्चन गलत रीजनिंग में। तो इतना तो शायद कभी भी नहीं हुआ आज तक। चलो, खैर, क्या कर सकते हैं। हर टाइप का मॉक होता है। मैंने पहले ही कह दिया था रीजनिंग को देखते ही साथ कि ये अच्छे लेवल की रीजनिंग आई है। इंग्लिश में तो 50 पे 50 है। 100% इसमें बढ़िया मार्क्स आए। इसमें 23 किए थे। 3 गलत हो गए। मैं इसमें 38.5। ओके स्कोर है। मैथ्स भी काफी, मतलब अच्छा लेवल था मैथ्स का भी। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पर काफी अच्छा था। जीएस में मेरे इतने याद था, उसमें देखने की जरूरत नहीं है, पर ये बहुत गड़बड़ हो गई है। इसमें कम से कम 40 आने चाहिए, तो ये 140। 140 प्लस कहानी तो रहती है, 145 140। है ना, चेक करते हैं जरा ऐसा भी क्या ब्लंडर हो गया आज। फर्स्ट वाला। इन ये देखो, क्लियर निकाला था। मुझे अभी भी याद है। ये निकाला था कि वो यहाँ से यहाँ खड़ा है, और इधर से अब उसको इधर जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था उसका गार्डन। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट हुआ ना यार। कहाँ से साउथ ईस्ट हुआ? तो 2.5 मार्क्स तो यहीं खराब हो गए। 140 तो यहीं बन जाते। ये गलत हो गया। चलो, ये तो मुझे नहीं गिनने आ रहे थे सही से। ये क्यों गलत है? ये देखो कितना फर्जी गलत है। क्या था कि वॉवल में +1 करना था। तो ए में +1 करके 3 बनने का, ना कि 2 रहेगा। वो +1 करके 3 बनना है। एक सेकंड। 14 - 1, 5 2 +1। A+1। 14 - 1। A+1 3। ये क्या इन लोगों ने गलत कर दिया है क्या? नहीं, vowels are these and rest are consonants, each ऐसे image। क्या हद वाली बात है ये? अच्छा, +1 -1 नहीं है, ये है। ये था कॉन्सोनेंट जो है उनके पहले वाले से। इसमें तो मतलब -1 कह सकते हो। vowels are numbered by immediately next number according to the alphabetical series। तो बीच में -1, ई में +1, ए में +1, सी में -1, एच में +1। बात तो वही है ना यार जो मैं कह रहा हूँ। 4 कॉन्सोनेंट है, -1 किया। वॉवल में +1 किया, कॉन्सोनेंट में -1। वॉवल में, कॉन्सोनेंट में -1, वॉवल में +1। ये तो वॉवल है, +1 करना था। ये इन्हीं का क्वेश्चन गलत है। गधे हैं क्या ये? ये गलत हो गया। चलो, ये समझता हूँ ये गलत कर दिया है। इसमें 4 कहाँ है एम्बेडेड है? सेकंड जो एम्बेडेड था। अच्छा, सेकंड नहीं था यार। ये एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें है ना। ये एक्स्ट्रा लाइन। तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए था। हद हो गई। इधर पे 19 + 2। ठीक है, लास्ट में यू ही आ रहा था।
किस सेंस में किया है ये क्वेश्चन? टॉपर्स का भी अनअटेम्प्टेड है ये। द लेटर्स जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में बने हैं, द लेटर्स विच आर एट द एंड आर न्यूली फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए का टी, का टी, एच टी। द लेटर्स विच आर एट द एंड्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। इसमें क्या है, ये तो मैंने समझ लिया था कि इसको अपन को वो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो एंड के लेटर हैं उनको तो उनको देख के ही लगा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, पर इधर पे ये एक चीज थी कि ये पहला सेम नहीं रहना चाहिए ना लास्ट का सेम रहना चाहिए। तो मैंने ये तो देख लिया था इधर पे कि छोड़ो अब यार, हद हो गई। के बाद भी टी के बाद यू। देखो, एस के बाद जस्ट टी आना चाहिए था, यू लगा दिया है यहाँ का देख के। बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन टॉपर्स ऑपर्स भी नहीं कर पाएंगे इसे। तो देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये, इसको नहीं गिनेंगे। एक ये पूरी सिली मिस्टेक है ये, दो क्वेश्चन हो गए। एक ये पूरी क्लियर तीन सिली मिस्टेक, और एक ये, चलो इसको नहीं भी गिनो तब भी तीन सिली मिस्टेक, 7.5 मार्क्स तो वही हो गए। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। तो अच्छा ये देखो, इधर पे मुझे याद है मैंने लिखा था 4/6, उसी को बोल दिया था 2/3, जबकि क्या बच रहा है 4/16, तो 1/4 बचेगा ना। ये एक पूरी सिली मिस्टेक। तो 10 मार्क्स की सिली, 10 मार्क्स ऐसे गए हैं, मतलब जाने नहीं चाहिए थे उसमें कुछ, वैसी गड़बड़ी थोड़ी है। ये क्यों गलत हो गया? दिस डिवाइडेड बाय दिस गिव्स जीरो रिमाइंडर। अच्छा, अरे यार, ये तो चलो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें नहीं कह सकता मैं कि ये मिलने चाहिए थे मार्क्स। हम्म, चलो ठीक है। 148 आने चाहिए थे रियल में, मतलब उसके लिए ना कुछ पढ़ने की जरूरत थी ना कुछ था। वो बस सारी चीजें बेवजह गलत हुई हैं, इतनी ज्यादा सी मिस्टेक। मुझे लग रहा था मैंने अच्छे से मार्क दिया है। खैर कोई नहीं। अगर आपको मेरी वीडियोस से वैल्यू मिलती हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।